though, is that 4 of them have been rescued safely. Remember, some of the family members of those trapped inside have also been camping at the rescue site, have been camping at the mouth of the Silkyara tunnel the last so many days. All of those prayers have worked today. That's the overall picture, with 4 workers who've already been rescued. Now, this is the final stretch, viewers, the moment that everybody in the country was waiting for. We were seeing how several basic essentials, necessities were being transported, rather being sent through that 6-inch pipe to the 41 trapped workers, including oxygen supplies. The last few days we saw how solid food was also reaching them. So that kept them going. But now, one by one, they're going to be making their way out of the tunnel. Abhishek, I believe, is back with us to take us through the latest. एम्बुलेंस आगे एस्कॉर्ट करके रखी हुई है पहले से, और पीछे से अब हलचल बढ़ी है। पुलिस ऑफिशियल्स जो उन्हें लेने गए थे वो अब आगे आ चुके हैं। थोड़ा सा और कैमरे को जूम इन करिए थोड़ा सा। और जो एम्बुलेंस, छोटी एम्बुलेंस अंदर गई हुई थी, वो छोटी एम्बुलेंस की हलचल अब वहां से बढ़ी हुई है। पीछे की साइड में कैमरा लेकर जाइए हरिंदर, थोड़ा सा पीछे जूम आउट करके जूम इन करिए यहाँ पर। और अभी वहां पर हलचल, एक और जो बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, जितने यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, इन्होंने हाथ हिलाकर हवा में मुट्ठी बांध कर इशारा किया है, यानी सफलता मिलनी शुरू हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर सिलक्यारा टनल के अंदर से। Abhishek getting us the big news of the hour. 4 workers have been rescued safely. Abhishek continues to tell us what's going on there. Abhishek, over to you. सबसे बाहर निकाल लिया गया है और कुछ ही देर में यहां से बाकी के 3 और वो 4 मिला के अब उन्हें निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, हरकत बढ़ गई है, एक्शन शुरू हो गया है, एम्बुलेंस खड़ी हो गई है और टनल में लगातार काम शुरू हो गया है। पहला शख्स जो बाहर निकल के शर्मवीर आया है, उसका नाम विजय है, और बाकी के 3 को निकाल लिया गया है और उनके भी नाम अब कुछ ही देर में पता चल जाएंगे। और उन्हें सबसे पहले एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी हुई है, उस ग्रीन कलर की एम्बुलेंस में उन्हें बाहर लेके आना शुरू कर दिया गया है। So one of the 4 is named Vijay, and he's trying to get to the bottom of more details. But you do see a lot of activity there. On the left side of your screens, the ambulances are parked right outside the mouth of the tunnel. And a lot of people really around the ambulance, whether or not, some of these workers who've now been pulled out, they're being transported to hospitals via these ambulances. That's something we're going to try and find out. But yes, those are the live visuals we continue to keep up with. Remember, these people have been in this collapsed portion of the tunnel for 17 long days. And after those 17 long days, after having faced those difficult conditions today, finally, they've been pulled out. They're being pulled out. 4 of them have been pulled out already via the wheeled stretchers, with ropes attached to them by the help of NDRF officials who are currently at the spot. Our sharp focus, of course, remains on how smooth the entire operation is going to be. The NDMA officials have made it clear that the entire process could last for about 4 hours, anywhere between 3 to 4 hours. It may take the entire night, they say, to finish the ongoing rescue operation. But the good news being that the technical challenges have been overcome. So that's the big relief at this point in time. And you see the kind of crowds gathered there, really. Rakesh is joining us with the latest. Let's cut across. की जांच होगी, इसके बाद शायद उन्हें आगे की ओर रवाना किया जाए। लेकिन ये तस्वीर, जो भी एम्बुलेंस के अगल बगल थे, उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन किया है। यानी जिस घड़ी का इंतजार था पिछले 17 दिनों के बाद, वो घड़ी अब आ चुकी है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी सफलता की इबारत लिखने लगा है, और इबारत ऐसी जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने तमाम मुश्किलें देखी, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने जिंदगी में उम्मीद तो बनाकर रखा, लेकिन उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि कभी लोगों को निराशा भी हुई, लेकिन हौसला जज्बा नहीं टूटा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें शुरुआत के 12 दिनों में जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे, उनके पास ना तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था, ना तो खाने पीने का कोई साधन था। वो मुश्किल हालातों में सर्वाइव करते हैं, और 10 दिनों के बाद
और 10 दिनों के बाद उनके पास पहला कम्युनिकेशन होता है, फिर उन्हें फूड आइटम्स पहुंचाया जाता है। थोड़ा सा जूम आउट करिए और फिर उसके बाद दिखाइए कि हलचल क्या हो रही है, अगल बगल लोगों की क्या हलचल है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। हरिंदर जरा तस्वीरें दिखाइए, एनडीआरएफ के लोगों ने इस एम्बुलेंस को घेर के रखा हुआ है और ऐसा फ्रेम बनाइए कि पीछे की भी जो हलचल है वो दिखाई दे। फिलहाल देखिए सबका ध्यान फिलहाल सबका ध्यान एक और पीछे की तस्वीर जूम इन करिए हरिंदर। पीछे जो छोटी एम्बुलेंस थी देखिए वो बाहर आते हुए जो रैम के बगल में खड़ी की गई थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, ऑपरेशन जिंदगी। थोड़ा सा जूम आउट करिए, ताली बजाकर लोग दौड़ रहे हैं उस एम्बुलेंस की ओर और ये तस्वीर बता रही है कि ये ऑपरेशन जिंदगी सफलता की पहली कहानी लिख चुकी है। श्रमिकों का बाहर निकाला जाना शुरू हो चुका है। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 7:57 पर मुस्कान की ये पहली